Welcome back, viewers. Now, in troubling development, two Hindu families in Jammu's Mohalla Dalpatian area have been issued a verbal ultimatum by the Waqf board officials to vacate the land they have called home since 1947. Now, Rani Devi, a widow, and Ratan Kumar have reportedly been told that they must leave within 2 days or face demolition of their houses. Rani lost her husband and her son. She expressed distress, saying she has nowhere else to go and relies on her job at a school for income. Ratan Kumar has said that the officials threatened bulldozing the house if they did not comply. Take a look at this report, a special report filed by my colleague Gursimran Singh. There have been several instances of the Waqf emergency throughout the country where the Waqf, how they are resorting to the unruly behavior of occupying the lands, has come into the fore. In the Jammu and Kashmir's Wazarat Road, Mohalla Dalpatian, the story is of a Hindu family. The two families that are living in the area, they have been asked to vacate the land. That is what we have shown you earlier as well. But now a 2 days ultimatum has been given to the families to vacate their land. The families that comprises of an old woman who has lost her husband and son, and also the other family that is totally dependent upon the daily course that they do to earn their livelihood. They have been asked to vacate this area so that they can move out from this area and also the Waqf and reclaim this land. But they are saying that they have no solution other than staying at this area, because they have been living in this area for more than 7 decades time. And now when the Waqf is asking them to vacate the land, they don't know where to go, because these are the families of the Hindu community that have been living here for a longer period of time, more than 7 decades time. And now when they have been given an ultimatum by the Waqf, they are speechless. They don't know what lies next for them, because time and again we have been witnessing the stories of the Waqf emergency that the Waqf is trying to implement in different parts of the country. ये क्या जगह दे रहे हो, ये चालियां में दे रहे हो, हम तो कहाँ मैं काम करूँगी, कहाँ खाऊंगी मैं, मेरा तो कोई है भी नहीं है। कल क्या बोले वो आपको? मेरे को तो ऐसे बोल रहे, जाओ उधर बैठो चुप करके, आपसे बात ही नहीं करनी है। तो बाकी क्या कहा गया, खाली कर दीजिए? हाँ, बोल रहे खाली करो, जिधर जाना जाओ। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना, अभी तो हमारे को इधर ही दे दें, 2-3 मरले तो ताएंगे थे। मैं तो काम करती हूँ आपके सामने, मैं अभी स्कूल से आई हूँ आपके सामने, सुबह निकलती हूँ 4 बजे 5 बजे घर आती हूँ, मेरा तो कोई है ही भी नहीं। आप समझ सकते हैं, ये बूढ़ी माँ है, इनका कोई नहीं है, पति और बेटा जो हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, जिसके बाद ये घर में अकेली हैं। दूसरे घर के लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ बच्चे हैं इनसे भी पूछते हैं। आपका नाम? पवन कुमार। पवन, मुझे ये बताइए क्या कहा गया उनकी तरफ से, आप घर पे थे जब वो आए? जी सर, मैं घर पे था, तो शाम को 4 बजे के करीब आया ये, तो इन्होंने सिर्फ आते यही बोला है कि पहले वहाँ पे खड़े हो गए, हमने कोई बात नहीं की इनसे। फिर इन्होंने हमको बुलाया, कह रहे घर में से किसी को बड़े को बुलाओ। मैंने अपने चाचू को बुलाया, तो इन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे काम लगवाना है, तो ये आपका जो शर्ट है ये उठा दो। तो हमने बोला इतनी जल्दी नहीं हम उठा सकते हैं, हम क्यों उठाएं, आप काम लगा सकते हो। तो हम इतनी देर के पुराने बैठे हुए हैं, हम भी तो काम लगाएंगे ना, अगर आप वहाँ से आते स्टार्ट कर दोगे काम तो हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हमने रहना ही यहाँ पे है, तो हमने खाली नहीं करना। वहाँ पे जगह दे रहे हैं आरएसपुरा, पर वहाँ पे बड़ी दूर दे रहे हैं, वहाँ पे गुजारा नहीं है। तो हमने यही बोला हमको यहीं पे बनाने की परमिशन दो, अगर आप गुजारा नहीं है। मैडम, क्या बताया गया उनकी तरफ से, कितनी देर में? 2 दिन का समय बोले? हाँ सर, उन्होंने बोला कि खाली करो, तो इधर साड़ा गुजारा नहीं, उधर जागा आरएसपुरा में, अं इधर दिहाड़ी दूड़ी लाने हैं, तो इधर अपना गुजारा करने हैं। इधर गुजारा करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, बस हमारा रिक्वेस्ट यही है कि हम दिहाड़ीदार बनते हैं, हमारा यहाँ ही गुजारा किया जाए। जितनी दिन हम पुराने हैं, हमसे नहीं बन सकती आरएसपुरा, ना हमारा दिहाड़ी शब्द चल सकता है। हम सारे ही सुबह दिहाड़ी लगाने जाते हैं, शाम को खाते हैं, हमने मकान कहाँ से बनाने हैं वहाँ पे। और 70 साल से रह रहे हैं पुराना, इधर लोग 10-10 साल वाले जगह नहीं खाली करते, हम तो 70 साल से पुराने रह रहे हैं, हमारे पास किराए की रसीदें हर चीज़ें हैं। बस प्लीज़ यही गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है, हमारा हल किया जाए बस। किराए। And there are multiple reactions, viewers, that are coming in on the Jammu Waqf controversy. Take a listen in. मैं समझता हूँ ये जो वक्फ ने अभी इनको फिर से कहा है, पहले भी समय समय पर आते रहे हैं, और लास्ट टाइम जो आपकी स्टोरी करने के बाद, और अब इन्होंने जो कल इनकी पूरी 10-15 लोगों की टीम आई थी, इनके डिपार्टमेंट की कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी आया था इनका, और इनको सीधा तौर पे इनको धमकी दी गई है कि आपने नेशनल मीडिया पे दिया है, और नेशनल मीडिया पे देखकर आपने बहुत बड़ी गलती कर गई है। हमारे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं वो नाराज़ हो गए हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसी इमरजेंसी लगाना और ऐसी दुर्दशा करना, सरकारें जो होती हैं वो लोगों को बसाती हैं,
सरकारों का काम है लोगों का ध्यान रखना, दबे कुचलों पिछड़ों का ध्यान रखना, लेकिन ये एक गरीब मजलूम फैमिली जो है उसकी इतनी दुर्दशा, आपने हालत देखी, क्या हालत हो रही है। वो अपनी रोज़ी रोटी नहीं रोज़ की कमा सकते, किसी दिन वो भूखे पेट भी सोना पड़ता है। लेकिन ये जो सरकारें हैं इनको सिर्फ अपनी जगह की कीमत है। इन्होंने सीधा बोल दिया है कि हमारी ज़मीन है, हम जो मर्जी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 48 घंटे का टाइम दिया जाता है कि आप लोग यहाँ से निकलिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो वक्फ एक्ट लाया गया है 1995, इसको रिपील करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि ये जो एक्ट है ये लोगों की भलाई के लिए नहीं है। ये एक तरह सा मुगली कानून है, जो पुराना कानून था, जो डंडा चलाने वाला कानून है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सरकारें, जो एक्ट बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, ना कि लोगों को वहाँ से निकालने के।